वेलकम फ्रेंड्स। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 123 की। आर्टिकल 123 विच एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। सो आर्टिकल 123 कहता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट कर सकता है व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट सच सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट which render it necessary for him to take immediate action। तो ये आर्टिकल 123 कह रहा है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर वेरियस salient features of this ordinance making power of president। तो देखिए जो ऑर्डिनेंस है दैट इज प्रोमुलगेटेड ऑन प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन, but this presidential satisfaction in actually is the satisfaction of council of ministers। this is the first feature। अब जो ये words यूज हुए हैं immediate action, so this immediate action has no necessary connection with emergency as mentioned under article 352 of the constitution। ये कहने का मतलब ये हो गया that the president is not dependent upon external aggression or armed rebellion for the promulgation of an ordinance, and the sole judge of the question whether such circumstances exist is the president himself। The court cannot make an inquiry into presidential satisfaction even when it is alleged that this power has not been exercised in good faith। But here comes the Cooper's case। Cooper's case में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था that the genuineness of presidential satisfaction can be challenged in a court of law on the ground that it was nullified। For example, किसी controversial matter पर जो पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको बाईपास करने के लिए पहले प्रेसिडेंट किसी एक हाउस को प्रोरोग करता है और फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करता है। So in this type of situation, the genuineness of presidential satisfaction can be challenged in a court of law। Now the next feature is that the position of Indian president in this regard of promulgating of ordinance is unique। This is because no other head of the state has this power anywhere in the world, and the constitution has vested this power in the president to deal with unforeseen and urgent matters। कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जिसको डील करने के लिए देयर इज ए नीड ऑफ लॉ, और पार्लियामेंट उस टाइम पे सेशन में नहीं है, सो टू एंड द डिले इन द लेजिस्लेशन कैन नॉट बी टॉलरेटेड। सो टू डील दैट सिचुएशन दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इन द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और ए हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। This is because even one house cannot make a law, and once the president has summoned the houses for reassembly, he cannot promulgate an ordinance, and this ordinance has a limited lifespan। After 42 days it is no more operative। 42 days means the maximum lifespan of this ordinance is 6 weeks। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप की। स्कोप ऑफ दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सो देखिए जो उसका स्कोप है दैट इज को एक्सटेंसिव विद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। अब को एक्सटेंसिव का मीनिंग ये हो गया कि द लिमिटेशंस एक्सटेंड एंड द लिमिटेशंस आर सेम एज दैट ऑफ द लेजिस्लेटिव लॉ, एज दैट ऑफ द लेजिस्लेटिव लॉ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर हम एक्सटेंड की बात करें the president can promulgate an ordinance only on those items on which a parliament can make a law। जो parliament है that can make law on union list items as well as on concurrent list items। तो president भी union list item और concurrent list item पे ordinance promulgate कर सकता है। अगर हम limitation की बात करें so a parliamentary law cannot violate the basic structure of the constitution and supremacy of the constitution, and same is the case with this ordinance कि जो ऑर्डिनेंस है ना तो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर सकता है और ना ही वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर सकता है। और
पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है दैट डज नॉट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो जो ऑर्डिनेंस है दिस कैन नॉट बी यूज्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑर्डिनेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट इसमें यह है दैट दिस पावर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट पैरेलल टू दैट ऑफ दिस पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट पैरेलल टू दैट ऑफ द पार्लियामेंट। इट मींस कि जब पार्लियामेंट सेशन में है एट दैट टाइम प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस। ये इसके स्कोप की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सेफ गार्ड की। व्हाट आर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस पावर। सो देखिए सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है वो यही है दैट द एवरी ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल। अगर जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं दीज आर समन टू असेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स देन द टाइम पीरियड ऑफ 42 days मस्ट बी काउंटेड फ्रॉम लेटर ऑफ दोज डेट्स। और लोकसभा ने इसी के रिगार्डिंग एक रूल भी बनाया है कि जब भी गवर्नमेंट किसी ऑर्डिनेंस को whenever the government seeks to replace an ordinance by a bill, a statement must be supplemented with the bill explaining that whatever the circumstances which necessitated it for the government to promulgate an ordinance। अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज उसको अप्रूव कर देते हैं देन इट विल बिकम एन एक्ट। और अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक रेजोल्यूशन पास करके इसको डिसअप्रूव भी कर सकती है। जो प्रेसिडेंट है दैट कैन विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। और लास्ट वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने नहीं रखती है देन आफ्टर 42 days इट विल सीज टू ऑपरेट। लेकिन जो भी इससे एक्ट्स डन हुए हैं या जो भी इससे एक्ट्स कंप्लीट हुए हैं बिफोर इट सीज टू ऑपरेट दे ऑल विल रिमेन फुली इफेक्टिव एंड वैलिड। ये तो हो गए इसके सेफगार्ड्स की बात। बट हेयर कम्स ए क्वेश्चन, क्या एक ही टेक्स्ट पर ऑर्डिनेंस को रिप्रोमलगेट किया जा सकता है? और इसका आंसर मिला था इन डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में देखिए हुआ क्या था, 1967 से लेके 1981 तक वहां जो गवर्नर था उसने 256 ऑर्डिनेंस पास किए थे। और उनमें से कई ऑर्डिनेंस तो ऐसे थे जिसको उसने 14 इयर्स तक अलाइव रखा था, और कुछ ऐसे थे जो प्रेसिडेंट की परमिशन से पास हुए थे, जो प्रेसिडेंट की परमिशन से प्रोमulgate हुए थे। सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट केम down heavily on this practice and called it a subversion of the democratic process and the fraud on the constitution। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है दैट ए ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल। ये सेंटर के लिए है, पार्लियामेंट के लिए। अगर गवर्नर ने पास किया है देन द ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर एक ही टेक्स्ट पर बार बार जो ऑर्डिनेंसेस को प्रोमulgate किया जाता है देन इट इज ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट विल डिक्लेयर दिस एज वॉइड। सो दिस वाज द जजमेंट ऑफ डीसी वाधवा केस। हमने बात करी थी आर्टिकल 123 की, जो प्रेसिडेंट को पावर दे रहा है टू प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस, बट देयर इज आर्टिकल 213 विच इज एम्पावरिंग द गवर्नर टू प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। बस यहां पे ये था कि जो प्रेसिडेंट है दैट कैन प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस ऑन यूनियन लिस्ट आइटम्स एंड कंकरेंट लिस्ट आइटम्स, और जो गवर्नर है वो कंकरेंट लिस्ट आइटम्स और स्टेट लिस्ट आइटम्स पे प्रोमulgate कर सकता है। जो एक्सटेंट एंड लिमिटेशन वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है वो गवर्नर पे फॉलो होंगी बिफोर प्रोमulgating एन ऑर्डिनेंस। अगर किसी आइटम पर स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है तो उसी आइटम पर और प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 123। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर स्टेइंग विद मी।